In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine. Subject English, class 4. Today we are going to start new chapter, unit number 3 from workbook. The chapter name is The Rupee Tree. Its mean पैसों का दरख्त. Now open your book, write the date and the day and put your finger on the word. A poor man live in at पाटनगर. एक गरीब आदमी जो कि एट पाटनगर में रहता था. One day he went to the king to ask for some money. एक दिन वो बादशाह के पास गया और उसने उससे कुछ पैसे के बारे में पूछा. The king offered him 100 rupees और किंग ने उसे 100 रुपये पेश किए. But the man refused to take the money and said, लेकिन उस आदमी ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, I don't want 100 rupees. मैं 100 rupees नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता. Just give me anything. आप मुझे कुछ भी दे दें, Your Majesty. Even a पैसा which you have earned through hard work. आपकी अजमत से ऐसा पैसा जो कि आपने अपनी मेहनत से कमाया हो, मुझे उसमें से बेशक 1 रुपया दे दें. The king was surprised. बादशाह बहुत हैरान हुआ. He could give anything as there was nothing he had earned through hard work. क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने अपनी मेहनत से कमाया हो. So he asked the man to come back after 2 days. और उसने उस आदमी से 2 दिन बाद आने को कहा कि वो 2 दिन बाद आए. The next day, अगले ही दिन, the king got up early in the morning, put on old torn clothes and went to a nearby village. बादशाह सुबह ही सवेरे उठा और एक पुराने से फटे कपड़े पहने और पास ही गांव में चला गया. There he met the leader of a group of laborers who were building a new road. The king asked him if he could give him some work. बादशाह ने वहाँ मज़दूरों के ग्रोह के एक रहनुमा से मुलाकात की जो कि वहाँ एक नई सड़क तैयार कर रहे थे. बादशाह ने उनसे पूछा क्या वो कुछ काम करने को दे सकते हैं. The leader asked, What work can you do? Can you dig a pit? The leader asked, What work can you do? Can you dig a pit? लीडर ने बादशाह से पूछा आप क्या काम कर सकते हो? क्या आप ये घड़ा खोद सकते हो? Yes, the king replied. जी हाँ, बादशाह ने जवाब दिया. All right, then take this pickaxe, dig a pit over there and bring some earth for the road. पिकअक्स कहा जाता है गेंती को या फिर ज़मीन में खोदने वाला आला. लीडर ने कहा कि आप पिकअक्स उठाएं और ज़मीन खोदना शुरू कर दें. The king picked up the axe and started the digging. बादशाह ने कुल्हाड़ी उठाई और खोदना शुरू कर दिया. But as he was not used to doing any hard work, लेकिन बादशाह जो है मेहनत से काम करने का आदी नहीं था. He soon got tired और वो जल्दी ही थक गया. He could barely hold the axe because there were sores on his palms. बादशाह बामुश्किल ही कुल्हाड़ी को और पकड़ सकता था क्योंकि उसकी हथेलियों पर ज़ख़म आ गए थे. The leader noticed how the king was suffering. He gave the king a 1 rupee coin and sent him away. लीडर ने नोट किया कि बादशाह बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि उसके हाथों पे ज़ख़म आ चुके हैं. तो लीडर ने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया और उसे वहाँ से जाने को कहा. The next day the king went to the royal court in his royal robes with the coin in his pocket. The next day the king went to the royal court in his royal robes with the coin in his pocket. Robes कहते हैं लिबास को. अगले ही दिन बादशाह जो है अपने कोर्ट में अदालत में शाही लिबास में जेब में 1 रुपये का सिक्का लेकर हाजिर हुआ. When the poor man came, जब गरीब आदमी वहाँ पर हाजिर हुआ, the king gave him the coin and said, और बादशाह ने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया और कहा, I have earned this through hard work. ये मैंने 1 रुपये का सिक्का मेहनत से कमाया है. The poor man took the coin home and planted it in his backyard. The coin soon sprouted and grew into a mighty tree covered with
rupee coins. गरीब आदमी ने उस 1 रुपये के सिक्के को लिया और अपने घर के पिछले हिस्से में बैकयार्ड में उस कॉइन को लगाया और कुछ ही टाइम बाद उसमें से बहुत सारे सिक्के निकल आए, मतलब सिक्कों का दरख्त बन गया बहुत अच्छा, जिसपे बहुत सारे सिक्के लगे हुए थे. When the king heard about the rupee tree, he was astonished. Astonished कहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना. जब बादशाह ने उस दरख्त के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया. He ordered his soldiers to uproot the tree and bring it to him. और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाएं और उस ट्री को जाकर जड़ से उखाड़ दें और उसे मेरे पास लेकर आएं. But the man did not let them touch the tree. लेकिन उस आदमी ने उस दरख्त को छूने नहीं दिया. He said, और उसने कहा, let the king himself come and take the tree away if he want. कि जाओ अपने बादशाह को कहो कि वो खुद आएं और आकर अपने दरख्त को ले जाएं अगर वो चाहते हैं तो. When the king came there, the man said, जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो उस आदमी ने कहा, Your Majesty, आपकी अज़मत, do you remember what you gave me? आपको याद है कि आपने मुझे क्या दिया था? Just a coin, 1 रुपये का सिक्का. But because you had earned it through hard work, चूँकि वो आपने मेहनत से कमाया था, It had grown into a mighty tree, जो कि एक ताकतवर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है. So the tree is yours, तो ये दरख्त अब आपका हुआ. But remember, मगर याद रहे, you gave me only 1 coin, आपने मुझे सिर्फ 1 रुपये का सिक्का दिया था. So if it please you, you can take away whatever you give me. यहाँ पर इफ़ इट प्लीसेस का मतलब है अगर आपको पसंद है या अगर आप चाहते हैं. तो उस आदमी ने बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप ये दरख्त ले सकते हैं, क्योंकि वो 1 रुपये का सिक्का आपने ही मुझे दिया था जिसके बदौलत ये दरख्त तैयार हुए हैं. द किंग फेल्ट हम्बल्ड एंड वेंट हिज वे. और बादशाह जो है बहुत ज़्यादा आजिज़ महसूस हुआ, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे बुरा लगा क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था. लेकिन हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमें जो है मेहनत करनी चाहिए. जो मेहनत करते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है. और इसी तरीके से उस शख्स ने उस एक सिक्के से पूरा दरख्त रेडी कर लिया, क्योंकि उसने मेहनत की तभी उसको फल मिला. और उस फल की सूरत में उससे क्या मिला? एक दरख्त जो कि पूरे सिक्कों से भरा हुआ था. तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें हर काम मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है. इसी से मुतल्लिक एक कोटेशन है, मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की चाबी है. अगर इंसान मेहनत करता है और बर्दाश्त करता है तो उसको कामयाबी लाजमी मिलती है. लर्न वर्ड्स पेज नंबर 21 पर. लुक एट दीज 2 वर्ड्स, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड. सरप्राइज़ मतलब होता है हैरान होना, एस्टोनिश्ड मतलब होता है हैरत ज़दा, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना. दे बोथ मीन more or less the same, but astonished is used when you are very surprised. दोनों के एक ही मीनिंग है, लेकिन astonished का मतलब है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना और सरप्राइज का मतलब है हैरान होना. नंबर 1, यूज़ द 2 words suitably in these sentences. आपने इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए. ए है हमारे पास, everyone in the village thought that Janser had been killed in the war. They were dash when he returned to the village. गांव के हर शख्स ने सोचा कि जान शेर जो है वो जंग में मारा गया है, और जब वो वापस आया गांव तो लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए? हैरान ज़दा हुए, बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हुए. तो आप लिखेंगे एस्टोनिश्ड. बी है, माय फादर लेफ्ट for Dubai. This morning I was dash when they came back after 2 hours. मेरे फादर आज सुबह ही दुबई रवाना हो गए थे. जब मैं वापस आया 2 घंटे बाद तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ. आप लिंदा ब्लैंक्स में सरप्राइज लिखेंगे. पेज टर्न करेंगे. सी है हमारे पास, हुमा इज़ नॉट एट ऑल गुड एट स्टडीज़. हर टीचर्स वर डैश when they heard that she had passed the SSC examination with the high first class degree.
हुमा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जब उसने सुना कि उसने एसएससी का इम्तिहान पास कर लिया है फर्स्ट डिग्री से, तो उसकी टीचर्स बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हुई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस्टोनिश्ड, ठीक है। डी है, आई वॉज डैश व्हेन द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई कुड एनीथिंग। मैं हैरान हुआ जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे सरप्राइज। ई है, वी वर डैश व्हेन वी heard दैट आवर नेबर्स 14-year-old डॉटर was getting married। हम हैरान ज़दा हो गए जब हमने सुना कि हमारे पड़ोसी 14 साल बच्ची की शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस्टोनिश्ड, ठीक है। अब आपने ये पेंसिल से लिखना है, मैंने हाईलाइट के लिए ब्लू से मेंशन किया है, ठीक है। वर्ड बुक पेज नंबर 22 पर ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू अ सीड आफ्टर यू पुट इट इन द सॉइल? थिंक ऑफ अ फ्यू वर्ब्स टू डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन टू अ सीड एंड राइट दैम इन दिस वर्ड वेब। Write as many as you can think of. One has been done for you. सीड कहा जाता है बीज को। जब आप मिट्टी में कोई बीज बोते हैं तो आप उसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपको ये वेब कंप्लीट करनी है। आपके माइंड में जो जो चीज़ें आती हैं आपने उस बॉक्सेस में लिखना है। एक उन्होंने आपको लिख कर दिया है, स्प्राउट, बेयर्स फ्रूट, लीव वेदर, ग्रोस, गेट लीव, फ्लावर। जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें हमें लीव्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास बेयर फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अब आपने ये लिख लेना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है लर्न ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ, एन और द। ये टॉपिक हम पहले समझ चुके हैं। ये क्या है हमारे पास? ये आर्टिकल होते हैं। आ कहाँ यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट के साथ, एन वॉवेल्स वर्ड के साथ और द स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ। हसन एंड हिज फैमिली वेंट ऑन वेकेशन लास्ट ईयर। लास्ट वर्ड हमारे पास वेकेशन है और वी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, आ यूज़ करेंगे। दे वेंट ऑन रोड ट्रिप अक्रॉस पाकिस्तान। आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, आ का यूज़ करेंगे। दे विजिटेड ऑल डैश फेमस सिटीज़। हमारे पास सिटीज़ फेमस होती हैं तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करें, इंक्लूडिंग लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर। ये हमारे पास स्पेसिफिक थे, ये एक ही नाम होते हैं, हर किसी के नाम नहीं होते, इसीलिए हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया। इन लाहौर दे मीट डैश ओल्ड कपल हु आस्क्ड देम टू स्टे एट देयर हाउस। ओल्ड हमारे पास वॉवेल वर्ड है, एन यूज़ करेंगे। इन इस्लामाबाद दे डिड सम शॉपिंग एट डैश मॉल। मॉल हमारे पास कॉन्सोनेंट है, आ का यूज़। हसन लव्ड विजिटिंग डैश खैबर पास इन पेशावर। खैबर पास आपके पास एक ही नाम है, स्पेसिफिक नाम है, आप दा का यूज़ करेंगे। When I asked Hassan what dash best part of dash trip, आप दा का यूज़ करेंगे। He said that dash whole trip was great, आप दा का यूज़ करेंगे, ये उनकी एक ट्रिप थी। He had dash amazing time on his vacation, and क्योंकि amazing का ए आपके पास वॉवेल है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 23 पे आपके पास न्यू क्वेश्चन है। मिस्टर एंड मिसेस हफीज़ are making a list of things they need to buy. Complete the sentences using the clue words giving in bracket and some or any. मिस्टर एंड मिसेस हफीज़ जो हैं वो लिस्ट बना रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है ख़रीदने की, और आपने क्लू दिए गए हैं, इसके मुताबिक फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। फर्स्ट है हमारे पास मिस्टर हफीज़ डू यू हैव डैश, ब्रैकेट में है मिल्क। मिल्क कोई भी हो सकता है, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, तो यहाँ पे हम एनी लगाएंगे। मिसेस हफीज़ नो वी डोंट, वी नीड टू बाय डैश मिल्क एंड डैश चीज़। आप कुछ मिल्क की ज़रूरत है वो कह रहे हैं और कुछ चीज़ की ज़रूरत है। मिस्टर हफीज़ वी शुड आल्सो बाय डैश फ्रूट। मिस्टर हफीज़ क्या कह रहे हैं कि उन्हें कुछ फ्रूट्स ख़रीदने की भी ज़रूरत है। मिसेस हफीज़ ऑल राइट वी ऑल्सो नीड सम ब्रेड, हमें जो है कुछ डबल रोटी ख़रीदने की भी ज़रूरत है। मिस्टर हफीज़ चिल्ड्रन
डू यू ऑल्सो नीड अ बाय समथिंग? बच्चों के लिए भी कुछ लेने की ज़रूरत है। वी डोंट हैव डैश सीरियल, कैन वी बाय चॉकलेट फ्लेवर डैश सीरियल? कुछ सीरियल लेने की भी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनी और सम, दोनों का यूज़ हो सकता है। साथ एंड आई वांट सम आइसक्रीम, और साथ को क्या चाहिए? कुछ आइसक्रीम चाहिए। सारा, मी टू, सारों को भी चाहिए आइसक्रीम। मिसेस हफीज़ ओके, लेट्स गो टू द सुपरमार्केट एंड गेट एवरीथिंग। मिसेस हफीज़ कह रही हैं कि चलें मार्केट चलते हैं और वहाँ से ये सब चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।